اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا انفارمیٹیو ٹی وی۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں انتہائی خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک کی، جو کہ کسی تعریف کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان ترقی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بھی ضرور ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چائنا کے لوگ دن دگنی رات چگنی ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ چائنا میں اگر 30 لوگ ہیں تو ان میں سے 15 لوگ کچھ دنوں میں ہی کروڑ پتی کیسے بن جاتے ہیں؟ چائنا میں شادیاں کیسے کی جاتی ہیں؟ چائنا میں 2 طرح کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھیے، کیونکہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ میرے وہ تمام ویورز جو چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، چائنا کا پورا نام ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی کہ RCB اس کو کہا جاتا ہے۔ چین کا نام جہاں پر پہلے تھے 3000 سال پچھلے بادشاہوں سے، یعنی چین یا کن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ملک کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے، اور جو کہ تجارتی اور صنعتی لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹوائلٹ پیپر کس کی ایجاد ہے؟ ٹوائلٹ پیپر چائنا کی ایجاد ہے، جو کہ بادشاہوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ کسی بھی ملک میں ٹائم زون ایک سے زیادہ نہیں ہے، لیکن چائنا نے 5 ٹائم زون بنائے، اور ملک کے کئی حصوں میں سورج صبح 10 بجے بھی نکلتا ہے۔ چائنا نے آزادی 1 اکتوبر 1949 میں حاصل کی، اور یہ آزادی کا دن بہت ہی جوش سے مناتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے پہلے چائنا کو تسلیم کرنے والا ملک بھی پاکستان ہی تھا۔ چائنا میں سب سے پہلے لینڈ کرنے والا جہاز بھی پاکستان کا ہی تھا۔ اس کے علاوہ چائنا میں بینکنگ کا نظام بھی پاکستان نے ہی سیٹ کر کے دیا تھا۔ تب سے چین اور پاکستان کے درمیان انتہائی دوستانہ تعلقات ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، پاک چین دوستی زندہ باد۔ تو یہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان شروع دن سے ہی بہت زیادہ اچھی بانڈنگ تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ کی پہاڑیوں سے بھی بلند اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ چین بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور ملک ہے۔ اس بات کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک کمپنی ہواوے 1 سال میں تقریباً 93 ارب ڈالر کما رہی ہے۔ دنیا کے 170 سے زائد ممالک میں اپنی سروس مہیا کرتی ہے، اور دنیا کی دوسری بڑی کمپنی بن چکی ہے۔ چین کی سرحدیں منگولیا، تاجکستان، کرغزستان، بھوٹان، نیپال اور نیپولیا سے ملتی ہیں۔ چین ہر کھیل میں پہلے نمبر پر ہے۔ چین کے پاس اقوام متحدہ کے لیے ویٹو پاور بھی ہے۔ چین کے صوبے گوئیزوئی میں اسکائی فائی پارک بھی موجود ہے، جہاں پر سیاح اڑن کشتیوں میں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی چین میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی زبان چینی ہے، اور آفیشیل لینگویج مینڈرین بھی ہے، جو کہ 80% لوگ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوی، مین، زیانگ کانگ بھی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چائنا کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ وہاں کی لوگوں کی انگریزی زبان بہت ہی ناقابل ذکر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے چائنی زبان کے کچھ لفظ سیکھ لینے چاہیے، تو ہی وہاں جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تsinghua یونیورسٹی چائنا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ دوسری، اور اس کے علاوہ شنگھائی جیاؤ تانگ یونیورسٹی تیسرے نمبر پر ہے۔ شنگھائی ٹاور برج خلیفہ کے بعد دوسرا بڑا اونچا ٹاور ہے، اور اس میں ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں، جو کہ دنیا کے دوسرے تیز ترین ایلیویٹرز ہیں۔ قدیم چائنا کے لوگ اپنے آپ کو امیر ثابت کرنے کے لیے اپنے ناخن بڑھاتے تھے، اور جو لوگ امیر ہوتے تھے، لڑکے اور لڑکیاں، وہ اپنے ناخن بڑھاتے تھے اور ان پر
सोने की डिजाइनिंग करवाते थे। चीन का मौजूदा निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरियत है और इसका मौजूदा सदर शी जिनपिंग है। चीन में जहाँ पर आसमान से बातें करती हुई लंबी इमारतें हैं, वहाँ पर छोटे मकानात भी मौजूद हैं। चीन ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर लोग भी हैं और ख्वाबों के पीछे दौड़ते हुए लोग तादाद तकरीबन 3000 है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है और इसके अरकान चीन के हर इलाके से ताल्लुक रखते हैं। चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसको वक्तन फवक्तन अपनी ही तरक्की पर रोक लगाना पड़ती है। दुनिया की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट भी चाइना के शहर यू में वाक़या है। दुनिया का सबसे लंबा पुल भी चाइना में वाक़या है। चाइना का सबसे बड़ा दरिया यांगजी है। आइसक्रीम भी चाइना में सबसे पहले इजाद की गई। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज भी चाइना में ही इजाद किया गया। चीन में 52% लोग किसी मजहब के मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ हर मजहब को अपना बिजनेस बनाया हुआ है। इसके अलावा 21.9% लोग फोक मजहब को मानने वाले हैं। इसके अलावा कुछ क्रिश्चियन, हिंदू और सिर्फ 1% मुसलमान चीन में वाक़ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चाइना में ननिंजिंग गोल्डन ईगल है, जो कि चाइना में है और वहाँ पर लोग जाते हैं और अपने हजारों डॉलर लगा आते हैं। चाइना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि नए साल के आगाज पर मर्द अपनी बीवियों को कंधों पर उठाकर चक्कर लगवाते हैं। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। दोस्तों, वैसे तो हम समझते हैं कि चाइना और अमेरिका आपस में दुश्मन हैं, लेकिन चाइना का सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क भी अमेरिका ही है। चीन का परचम सुर्ख रंग का है, जो कि इनकलाब की निशानी है और इसके कॉर्नर पर एक बड़ा सितारा है और 4 छोटे सितारे हैं। 4 छोटे सितारे हैं जो कि 4 समाजी तबकों की नुमाइंदगी करते हैं और बड़ा सितारा हुकूमत की निशानदही है। चाइना का हिपोक्सी गांव सबसे अमीर तरीन गांव है, जिसका अपना एयरपोर्ट है और हर एक इंसान के बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं उस दिलचस्प मालूमात के बारे में बात कि चाइना में शादियां कैसे की जाती हैं। तो दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि चाइना में लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं, यानी कि 1000 लड़कों के लिए 870 लड़कियां हैं। शादी के लिए लड़की की उम्र भी 22 साल और लड़के की उम्र भी 22 साल होना ज़रूरी है और शादी में सुर्ख रंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। शादी के हर फंक्शन में सुर्ख रंग का होना बहुत जरूरी है। चीन की दुल्हनें मायूं भी बैठती हैं और शादी से कुछ दिन पहले बाहर निकलना भी बंद कर देती हैं। चाइना में जहेज देने का रिवाज भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग हर तकरीबात के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या एक नाम इस्तेमाल करते हैं, तो चाइना में हर उस नाम का मतलब लीशी होगा, यानी कि वो हर उस तकरीब को लीशी ही बुलाएंगे और लीशी का मतलब है गुड लक फॉर एवर। दूल्हा लड़की के घर जाता है, वहाँ पर उसको दरवाजे में से तब तक नहीं अंदर जाने दिया जाता जब तक वो लीशी नहीं देता लड़कियों को। फिर वो लड़की के वालिदैन के पास जाता है, वहाँ से शादी की इजाज़त लेता है, फिर लड़की के पास जाता है, उसको तोहफा देता है और फिर लड़की को अपने कंधों पर बिठाकर गाड़ी में बिठाकर शादी हाल में लेके जाया जाता है। उसके बाद शादी के लिए कबूलियत की एक लंबी तकरीर की जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों इकरार करते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन के थोड़े थोड़े से बाल काट दिए जाते हैं। उन बालों को एक पोटली में बंद करके संभाल के रख लिया जाता है और फिर इसके बाद दूल्हा दुल्हन शादी हो जाने के बाद तमाम मेहमानों में कुछ मीठी यानी चॉकलेट वगैरह सारे मेहमानों में खुद बांटते हैं। चीन में आज भी रुखसती के वक्त लड़कियां आंसू बहाती हैं और माँ भी आज भी लड़कियों को रुखसती के वक्त आंसू बहाकर ही रुखसत करती है और गाड़ी में बिठाने के लिए दूल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है और इसी दौरान में दुल्हन की बहन जो है वो सुर्ख रंग की एक अम्ब्रेला लेकर उनके ऊपर किए रखती है और एक साइड से उस पर दुल्हन पर चावल गिरा दिए जाते हैं। रुखसती के वक्त गाड़ी के पीछे सुर्ख रंग की छलनी और आईना बांधने का भी रिवाज है, जो कि बदरूहों से दुल्हन को बचाने के लिए एक रिवाज है। गो के चीन में आज भी मॉडर्न शादियां भी हो रही हैं, मगर रस्म और रिवाज का आज भी ख्याल रखा जाता है और रस्म और रिवाज को आज भी माना जाता है।
रस्म और रिवाज को मद्देनजर रखकर ही मॉडर्न शादियां भी की जाती हैं। इसके अलावा एक दूसरी तरह की शादी भी की जाती है कि चाइना की नस्ल इन अजीब फजूल रसूमात से छुटकारा हासिल करने के लिए भी वो शादी करती है। उसमें होता ये है कि जो दूल्हा होता है वो साइकिल पर जाता है और दुल्हन को बिठाकर अपने घर ले जाता है। ना ही वो पैसा खर्च करते हैं और ना ही वो अजीब और फजूल रसूमात को मानते हैं, और ये इस तरह वो शादी कर लेते हैं और इसको बरहना शादियां भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर चाइना की तरक्की की बात की जाए तो चाइना में अगर तरक्की शुरू हुई थी तो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए चाइना के बादशाहों ने सबसे पहले पांडे पालना शुरू किए थे, और यही वजह है कि चीन में सबसे ज़्यादा पांडे पाए जाते हैं। इसके अलावा चीन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, जो कि इसकी तरक्की याफ्ता होने की एक और वजह भी है। वो कौन सा काम होगा जो चाइना में नहीं होता होगा। चाइना ने ज़ल्ज़ले की नुमाइश के लिए ज़ल्ज़ले की पेशन गोई के लिए एक आला इजाद किया था, जो सबसे पहले चाइना में ही इजाद किया गया था, और उस आले को बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता था, और उस वजह से भी चाइना ने बहुत पैसा कमाया। चीन के स्टोरों पर बार्गेनिंग का बहुत ही ज़्यादा रिवाज है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की बजाय करेंसी को अहमियत दी जाती है। अगर आप जाएं तो क्रेडिट कार्ड के बजाय करेंसी साथ ज़रूर लेकर जाएं। अमूमन सस्ते होटल सियाहों को ऑर्डर नहीं किए जाते, एक खास कीमत रखने वाले ही होटल सियाहों को ऑर्डर किए जाते हैं। बैरून मुल्क में हमारा सबसे बड़ा मसला हिलाल खाना है। बीजिंग और युआन में बहुत ज़्यादा हिलाल रेस्टोरेंट हैं जहां पर हिलाल खाना मिलता है। चीनी जुबान में हिलाल खाने के लिए चिंग चैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बीजिंग में एक मस्जिद भी मौजूद है। इसके अलावा हिलाल खाने, हिलाल रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। चीनी नकूश में बनाई गई ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की मशहूर डिश हाट पाट डिश है, जिसमें खोलता हुआ पानी डाल दिया जाता है और नीचे से उसको आग मुहैया कर दी जाती है, और साथ में आपको कच्ची सब्जियां और गोश्त दे दिया जाता है, और वो आप साथ साथ पका कर खाएं। इसको मुख्तलिफ सॉसेस के साथ खाया जाता है, और इसके साथ ही एक मीठी चटनी और ठंडा शरबत दिया जाता है, जो कि आपको लाइन में लगकर लेने का और उसका मुआवजा देना पड़ता है। चीनी शहरियत ऐसे नहीं मिल जाती कि वहाँ पर पैदा हुए और चीनी शहरियत मिल गई। वहाँ चीनी शहरियत लेने के लिए आपके माँ बाप के अलावा उनके माँ बाप का एक का चीनी होना लाजमी है। घोड़ों पर सबसे पहले सफ़र करने वाले चाइनी ही थे। इसके अलावा बीजिंग ओलंपिक्स खेल भी चाइना में खेली गई, और जिस पर 40 अरब डॉलर रुपए खर्च किए गए। चीनी कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, जो कि 26,000 कबल बना था। इसके अलावा चाइना से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई, इसलिए भी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जो कि इंतहाई मालूमाती वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस कंट्री पर बनाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।